So, hello everyone, I am Professor Aditya Kidari. Uh, so, today we are going to see the second part, that how should you approach Indian polity and governance for mains. In our last part, we saw that how we are going to study for prelims, and we also discussed some MCQ questions, जिसमें हमने 8 से 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जिससे आपको पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन द UPSC prelims. So today we will study with regards to when it comes with regards to mains. तो उससे पहले आप, जी हाँ, जो लोग नए हैं, दोज पीपल हु आर न्यू, हु कैन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. यू कैन follow my Facebook page, Facebook group, Telegram channel, which are named after my academy, that is ARK Academy. आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. All right, and some of my students who have been successfully selected in UPSC, Anil, Vaishnavi, and Vinayak. Vinayak became IAS this year, 2020. Regardless of the situation of Corona, everything, but he still gave the attempt and he cracked. His rank was 95th this year. All right. So let's see with respect to polity and governance when it comes to the mains exam. तो हमें mains exam के point of view से इस बार देखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि polity, constitution and governance is a part of GS paper 2. Okay. So in the last session we saw there are 4 GS paper: GS1, GS2, GS3, GS4. In GS1 it is history geography, GS2 it is polity, governance and international relations, GS3 about economy, environment, geopolitics, GS4 is about ethics. Okay. And ethics is such a paper where, social perspective, constitution, geography, history, you should have knowledge about everything. So it really helps you to write your GS paper 4, that is basically ethics, okay, which is a completely different module. So definitely when you study for polity, आप जब polity या governance की पढ़ाई करते हैं, it also tells you what kind of values, what kind of attributes are expected in a civil servant for good governance, because good governance demands accountability, transparency, integrity. Then and then only there can be effectiveness and efficiency in the way the government functions. So that's why आप देखेंगे तो ये आपको GS पेपर 4 में भी मदद करेगा, लेकिन बेसिकली GS पेपर 4 के लिए पूरी कंप्लीटली और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. So a good understanding and analysis of the current constitutional developments is necessary. तो आपको करंट न्यूज पता होनी चाहिए. तो रिसेंटली आपको पता होगा कि प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया था. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इवन आपने अगर यूट्यूब पे भी अगर कोई जो न्यूज़ के चैनल्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपने देखा होगा, तो एक प्राइवेट मेंबर है, राज्यसभा के बीजेपी के मेंबर हैं. वो पर्टिकुलरली प्रियम्बल में चेंज लाना चाहते थे. अल्फोंस करके वो मेंबर का नाम है. वो चाहते हैं कि भाई हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो. तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मतलब प्रियम्बल को अमेंड करना चाहते हैं बाय अ प्राइवेट बिल. ठीक है. तो ऑब्वियसली वो सर्टेन चेंजेस लाना चाहते हैं प्रियम्बल के अंदर. तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगता है क्या, प्राइवेट मेंबर बिल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं क्या, इसमें स्पीकर या वो राज्यसभा का मेंबर है क्या, लोकसभा का मेंबर है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या जिससे वो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. उसके बाद जो भी उसने बिल में बताया है कि इज दैट फिजिबल, is it questioning or is it violating the basic structure of the Indian Constitution which was laid down under the केशवानंद भारती केस. ठीक है. तो इन्होंने जैसे बताया कि इक्वालिटी का जो टर्म्स है वो चेंज कर दीजिए, उसके अंदर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी को एक्सेस दीजिए, ये अलग से उन्होंने एडिशन किया है. फ्रैटर्निटी शब्द को और ज्यादा एलॉबरेट कीजिए, जहाँ पे फ्रैटर्निटी नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट आल्सो थिंक रिगार्ड्स टू कम्युनिटी. उसके अलावा उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर भी एम्फोसिस किया है कि आपने देश का जो जो हाई ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस हो, ओवरऑल जो हैप्पीनेस लेवल से देश की बढ़े. तो इन्होंने ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट्स करने को कहा है. तो ये कितना फिजिबल है, इज इट अलाउड, इज इट नॉट अलाउड, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल शो यू कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पे एनालिसिस बहुत जरूरी है और एनालिसिस के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. You can't just mug up the facts, you can't just mug up the articles and the provisions and then you expect to write the examination to crack IAS. वो जमाना गया. It was okay in the 90s and the early 2000s where you just mugged up the answer and you just spilled that answer on the paper and then you used to get IAS IPS. But today, that's not possible. So while preparing for polity,
इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर एनी न्यू डेवलपमेंट्स इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जैसे मैंने बताया, बिल्स हो जाए, एक्ट्स हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, पॉलिसीज, ये सब आपको पता होने चाहिए। सो वेदर इट इज फार्म रिफॉर्म लॉज हो जाए, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया, उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा दिया गया, वो हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स आपको पता होना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 गेटिंग डिक्रिमिनलाइज, ट्रिपल तलाक गेटिंग डिक्रिमिनलाइज, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। नाउ इवन मुस्लिम वुमन कैन गेट मेंटेनेंस। तो ये आपको डेवलपमेंट्स जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो है, ये भी आपको ओवरऑल पता होने चाहिए, नॉट लीगली। आपको सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर रटने की जरूरत नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज के ऊपर, ये आपको पता होना जरूरी है। And you also have to keep a watch in the changing happenings in the national and the international political systems. For example, श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी चल रही है, फूड इमरजेंसी चल रही है। पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है। देर आर राइट्स इन स्पेन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, आपके पास एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, तभी आप मॉल्स में जा पाओगे, थिएटर या आप थिएटर जा पाओगे, या आप होटल में बैठ सकोगे। तो अगेंस्ट दैट पीपल आर प्रोटेस्टेड इन स्पेन, ऑस्ट्रिया। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, वो आपको पता होनी चाहिए। Another fact you should know that Black Lives Matter was a movement which started in America where an officer, a white, killed a black. So उसके ऊपर बहुत आउटरीच हुआ था। It also impacted the cricket World Cup where initially the South African wicketkeeper Quinton de Kock did not accept to take a knee. To take a knee means to accept that okay, we respect, there should not be any racial discrimination. But later on he accepted and he kneeled. He said okay fine, it's okay with me. So ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर्स इन द मेंस क्वेश्चन पेपर। अभी 2020 के क्वेश्चन पेपर के मैं थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि आपको पता चलेगा कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, आपको अगर लगता है कि किसी मैं मंथली एडिशंस के, अगर मैं किसी के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर मैं मंथली पीडीएफ डाउनलोड करके फ्री में अगर उसको पढ़ाई करूंगा तो मैं अप्रोच कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, क्योंकि ऑल दिस यूपीएससी नोज ऑल द इंस्टीट्यूशंस, सारे एकेडमीज उनको पता है, उनके नोट्स भी उनको पता होते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जहां पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो सो देर इज अ नीड फॉर, जैसे क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, so there is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the RPA. Representation of People Act is one of the chapters in the Indian polity. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये एक्ट के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्सन कैन गेट डिस्क्वालिफाइड। अभी ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो दैट मीन्स दोज मिनिस्टर्स हु आर फाउंड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस दे शुड बी इजीली रिमूव्ड। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, तो आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो प्रोसीजर जब पता होगा तभी उसके, और इसके लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, न्यूज़पेपर में इसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर हमने पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद का ओपिनियन भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द आंसर। तो अभी ये अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन कवर अप नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, a very good example where you can see the difference between constitutional law preparation for law degree and preparing for polity and governance in your UPSC। अगेन जेएमएफसी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जेएमएफसी में बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इलॉबरेट, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जेएमएफसी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई इट इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स एक्चुअली इन द वर्ल्ड, सेकंड टफेस्ट। रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में चेंजेस किए गए थे, जहां पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सर्विस कंडीशंस अब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, डायरेक्टली लिंक टू करंट अफेयर्स। क्योंकि पिछले साल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में चेंजेस किए गए, जिसके लिए काफी हैवी क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके अंदर उनके जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो कंडीशन सब कुछ अब गवर्नमेंट ने उसके अपने हाथ में ले लिया है, जिसके वजह से उनकी ऑटोनॉमी और उनके इंडिपेंडेंस पे इम्पैक्ट होगा। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज्यादातर गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन दूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी डिमोशन हो सकती है, मेरा ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है जहाँ पे इट विल बी अ पनिशमेंट पोस्टिंग फॉर मी। तो इसके ऊपर आपने पढ़ना, अगर आपने पेपर नहीं पढ़ा है, अगेन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल। हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, competition and confrontation have shaped the nature of federation India?
तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच के जो झगड़े होते हैं, चाहे वो जीएसटी का लॉ ले लीजिए, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट लीजिए दो स्टेट्स के बीच के अंदर, तो फेडरलिज्म का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो हम एग्जैक्ट फेडरेशन तो नहीं है। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर नॉट एन एग्जैक्ट फेडरल स्टेट लाइक अमेरिका। हमारे स्टेट्स कंप्लीटली रिलाई अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टिल अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंपटीशन होगा तो क्या हो सकता है, कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है क्या। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको एनालिटिकली जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये आंसर टैकल कर पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि स्पीकर, व्हेन आई एम रीडिंग विद टर्म्स टू पॉलिटी, इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? तो स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा, तो आपको स्पीकर के प्रोविजंस पता होने चाहिए, उसके वे ऑफ फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, उसके पावर्स आपको पता होने चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि देयर शुड बी सम चेंजेस, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसका पहले सबसे पहले तो आपको इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, दैट मीन्स व्हाट। आपने एक बार अगर आप स्पीकर करके अगर आप चुन के आपको जो लोकसभा में छोटे इलेक्शंस होते हैं उसमें आप स्पीकर चुना जाता है, एक बार आप स्पीकर बन गए तो रिजाइन करने के बाद फिर से आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक बार जो स्पीकर होता है, ही हैज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन। ही हैड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी, ही कैनॉट बी सब्जेक्टिव, ही कैनॉट फेवर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो ही हैज टू बी न्यूट्रल पर्सन, कि चाहे अपोजिशन बोल रही है क्या पावर पॉलिटिकल पार्टी इन पावर बोल रही है। लेकिन होता क्या है, जब आप स्पीकर होते हो तब आप बोलते हो कि मैं पॉलिटिकल न्यूट्रल हूं, पर जब मैं रिजाइन करता हूं तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आई एम अ मिनिस्टर। हाउ इज दैट पॉसिबल? फिर आप हाउ कैन यू बी न्यूट्रल व्हेन यू आर अ स्पीकर? सो द लाइक्लीहुड ऑफ यू बिकमिंग न्यूट्रल एज अ स्पीकर इज वेरी लेस। तो ये चेंजेस करने की जरूरत है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं क्या? तो पेपर में कई बार उसके रिलेटेड एग्जांपल्स दिए जाते हैं जहां पे स्पीकर कभी कभी बायस्ड उन्होंने बिहेव किया है, तो वो एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन आया था, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन पास्ट फ्यू डेकेड्स। हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। तो राज्यसभा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि राज्यसभा सेकेंडरी है लोकसभा को, लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा लेस पावरफुल है। जी बिल्कुल नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पावरफुल है अपनी अपनी जगह पे। देर आर सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स राज्यसभा, जहां पे लोकसभा की पावर नहीं है। लेकिन मनी बिल जब हम देखते हैं तो सिर्फ लोकसभा पावरफुल है, इसलिए सभी को लगता है कि लोकसभा पावरफुल है। मनी बिल को अगर आप छोड़ दोगे तो मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशंस में राज्यसभा इज हैविंग इक्वल पावर व्हेन इट कम्स टू लोकसभा। सर्टन एस्पेक्ट्स में तो राज्यसभा के पास ही पावर है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को अगर निकालना है तो वो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। अगर स्टेट सब्जेक्ट के स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। सो राज्यसभा, ये लोकसभा नहीं कर सकता, ये लोकसभा कैन नॉट इनिशिएट सच बिल्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो आपको राज्यसभा के पावर्स, फंक्शनिंग सब पता होनी चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर आंसर को सही तरीके से लिख पाओगे। और रीसेंट एग्जांपल्स जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे वही आपको एग्जांपल्स करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए कि राज्यसभा इज नॉट जस्ट अ स्टेपनी, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। उसके अलावा मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा 2019 के। ओके, अब 2019 में देखोगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its power as an independent judicial authority। तो अब ये कंप्लीटली ये क्वेश्चन 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर लिख पाओगे। और करंट अफेयर्स में इसके बारे में जब जो चर्चा हुई है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड। एक्सप्लेन। अगेन यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो कई बार अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे लॉस पास किए हैं जो स्टेट लिस्ट को हिट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, एजुकेशन कंकरेंट में आता है, लैंड हो जाए, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है जो स्टेट लिस्ट को हिट करता है, क्योंकि ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब अगेन लेजिस्लेटिव रिलेशंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट्स, कि भाई अभी कोर्ट भी लॉ बना रहा है क्या, कैन कोर्ट्स मेक लॉ, सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट।
ओके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कर सकता है। तो ये आपको तब का जो पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसी में आपको ये आंसर आप लिख पाओगे। उसके बाद दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर, it is not absolute, it cannot be enlarged into absolute power. In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure by expanding its amending power. क्या ये डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? तो हम सभी को पता है कि केशवानंद भारती केस ने क्लियरली बता दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा चाहे चेंज कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट अमेंड और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। फैक्टर्स सच एज सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। ओके, सो ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये अगर नहीं होगी तो आप ये आंसर नहीं लिख पाओगे। अगेन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमन, अभी दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वुमन एम्पावरमेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तीनों को मिलके है। इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। हैज हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। जी हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पंचायत में या म्यूनसिपालिटीज में औरतें सरपंच होती हैं और औरतें मेयर होती हैं, औरतें वुमेन आर सिटिंग एट द प्राइम द मेन पोजीशन, बट एक्चुअली कामकाज उनके पति कर रहे हैं या उनके ससुर जी कर रहे हैं या उनका भाई कर रहा है, या उनका कोई जान पहचान वो जो घर में जो करता है, दैट पर्सन इज एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट और टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन। नाम पे सिर्फ ये लड़की है, लेकिन कामकाज कौन चला रहा है? तो उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो लोग चला रहे हैं उनके फैमिली में के। ये प्रॉब्लम नोटिस हुई है। अनदर इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा कि इवन तो ऐसा नोटिस हुआ है, लेकिन उसके साथ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, जहाँ पे औरतों ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे एक्चुअली औरतें काम कर रही हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते पूरी तरीके से कि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहा है। सो यस, इम्पैक्ट इज लेस, बट it is still an impact which has declined some patriarchal character in our इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं 2019 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इट इज विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्कस। तो अटॉर्नी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। अटॉर्नी जनरल के आपको सारे पावर्स फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, तो आप ये लिख सकोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई एनालिटिकल ज्यादा नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ऐसे आप 10th या 12th स्टैंडर्ड के आंसर नहीं लिख रहे हो, यूपीएससी के लिए लिख रहे हो। तो एनालिटिकली जब आप लिखोगे तो हाउ इज अटॉर्नी जनरल द चीफ लीगल एडवाइजर, हाउ ही एक्ट्स एज अ लॉयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको लिखना है। ओके, नहीं तो आप लिख दोगे उसका ये आर्टिकल है, उसका उसका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, उसके पावर्स क्या है। ये सिविक्स नहीं है, दिस इज नॉट सिविक्स, दिस इज नॉट 10th 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको एनालिटिकली लिखना पड़ेगा कि अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइजर का रोल कैसे परफॉर्म करता है और लॉयर का रोल कैसे परफॉर्म करता है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Individuals parliamentarians role as the national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss। तो ये काफी इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियंस आजकल वो ज्यादा एब्सेंट रहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में एब्सेंट ही बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा लोग डिस्कशन नहीं करते, डिबेट नहीं करते, लोग वॉकआउट कर देते हैं, झगड़ा हो जाता है तो वॉकआउट कर देते हैं, गाली गलौज करके निकल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, रादर देन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सीरियस डिस्कशंस। वो मजाक मस्ती में ही उस चीज को लेते हैं, रादर देन डिस्कसिंग कि वो लॉ कैसे बनाया जाए। तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। तब उस साल का जो भी पेपर होगा उसमें डेफिनेटली इसके बारे में 10-12 आर्टिकल आए होंगे, इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया। So these are some of the questions, example of some questions which have been asked in 2020 मेंस फॉर यूपीएससी, 2020 2019। अभी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर एनालिटिक जो बाहर आएगा तो उसके ऊपर भी पता चलेगा कि उसका कैसा पर्सपेक्टिव। तो हर साल अलग क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जेएमएफसी के क्वेश्चन देखोगे तो पूरे अलग है। ओके, इट हैज नथिंग टू डू, बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। तो अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे की जाए, तो कौन से किताबें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी किताबों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है वो है 11th स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दिस इज द मोस्ट, लेकिन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की भी एनसीईआरटीज हैं, 12th स्टैंडर्ड की भी एनसीईआरटी है। लेकिन फ्रॉम माय बेसिक पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो आप सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की भी पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है, बिकॉज आप सब लॉ के स्टूडेंट्स और 9th 10th की पढ़ने की जरूरत नहीं है।
11th स्टैंडर्ड की आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क डेफिनेटली पढ़ सकते हो. इट विल क्लैरिफाई योर बेसिक कंसेप्ट सच एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमको कई बार पता नहीं होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं डेमोक्रेसी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं. उसके अलावा द वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी की किताब है भाई, वो तो बहुत पॉपुलर किताब है. ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स 100%. मेंस में आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेपर रीडिंग भी करनी पड़ेगी. उसके अलावा डीडी बसु की भी किताब है, इट इज़ वेरी गुड. आप उसको पढ़ सकते हैं फॉर मेंस के लिए. उसमें डिस्कशंस दिए हैं, डिबेट्स दिए गए हैं कि भैया कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. हर एक आर्टिकल के ऊपर का डिस्कशन है. अगर नहीं होता तो, अगर होता तो, उसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छी तरीके से डी डी बसु में. उसके अलावा अगर आपको पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बोला, आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए. करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए, तो कोई बोलता है टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई बोलता है लोकल न्यूज़पेपर. जी बिल्कुल नहीं. यू विल हैव टू रीड द हिंदू, जो पर्सनली मैं पढ़ता हूँ. मेरे भी काफ़ी जो मेरे वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, वो भी द हिंदू पे बेस्ड होते हैं. अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो अ गुड पेपर. बट पर्सनली फॉर सिविल सर्विसेज मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है द हिंदू. ऑल राइट. उसकी दिस विल रियली हेल्प यू टू, और एनी न्यू लॉज एक्ट्स पॉलिसीज आपको अगर कहीं पे मिलते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो, विच इज विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन. ये भी आप डेफिनेटली जो भी अवेलेबल होगा वो आप पढ़िए. कई बार पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया होता है, घुमा के बोलते हैं. हर एक पेपर के लिखने वाले का अपना ओरिएंटेशन होता है, अपना एजेंडा होता है. वी हैव टू बी न्यूट्रल एज अ सिविल सर्वेंट. आपको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है. इम्पार्शलिटी मेंटेन, पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी, पब्लिक इम्पार्शलिटी रहना बहुत जरूरी है. तो कई बार आंसर में पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड हैं या आपका कुछ एजेंडा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर में होता है. ऑल राइट. प्रैक्टिस एमसीक्यूज एट होम फ्रॉम द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. तो जितना आप, जैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब आप करेंगे, तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी क्लियर करने में. तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. और सॉल्व करने के बाद अगर गलत आंसर आया है, या आपने तुक्का जो मारा है, भाई चलो जय माता दी करके टिक कर दिया और वो राइट आ गया, तो एक्चुअली उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. आपके जो भी टीचर होंगे, जो भी आपके गाइड होंगे, उनसे पूछना बहुत जरूरी है कि सर यही आंसर क्यों है, या मैंने गलती की तो कहाँ गलती की. क्योंकि अगर आप गलत आंसर टिक करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स में, विच इज वेरी वेरी बैड. बहुत बुरा हाल होता है. बच्चे लगता है कि चलो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं. तो प्रिपरेशन करते समय आप एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, या सुभाष कश्यप भी एक ठीक ठाक किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हो. द हिंदू नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस. ये बेसिक है, ये चीजें आपको करनी ही है. ओके, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, इसके बिना मतलब कोई चांस नहीं है. इतना तो बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा. सो दैट वाज बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू मेंस. तो पहले हमने देखा प्रीलिम्स में कैसे प्रिपेयर करते हैं. अभी हमने देखा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे प्रिपेयर करते हैं.